Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Barbot Sena Bitiya, Commerce section. We are in fourth chapter, Problem and Excess and Deficient Demand. In previous video, we are discussed over problem excess demand, inflationary gap, and in that video, we finally find that excess demand is a situation after full employment. Only after full employment inflation can be adjusted in any economy. And now we come on consequence of excess demand. तो consequence of excess demand में हम कहते हैं कि फोर excess demand leads to four critical situation in the economy, and that four critical situation in the economy is: first, inflationary gap. Four critical situation in the economy is: first, inflationary gap; दूसरा, static GDP; तीसरा, excess demand and wage price spiral; and चौथा, loss of profit. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप की. हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप दैट इज अराइज व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड over full employment level, ADF, and after that ADF1, the gap between ADF and ADF1. तो ये गैप जो है, that gap is known as inflationary gap. Inflationary gap. एग्रीगेट डिमांड के ऊपर अगर डिमांड बढ़ते हैं, यहाँ पे एडी है, यहाँ पे इनकम है, अगर एग्रीगेट डिमांड के ऊपर इनकम बढ़ते है तो दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप, एंड दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस एडी. वेन एवर देर इज एक्सेस एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी ओवर सप्लाई, देन देर इज ए इन्फ्लेशन exist, and the gap between actual demand and effective demand, that is known as inflationary gap. Inflationary gap always tends to a price rise, and which is a harmful situation for economy, because if inflationary gap were going to be continued, it harass the saving and investment in an economy, and also decrease the growth rate of employment and income and in economy. Second क्या है कि static GDP. Static GDP कैसे है? तो जैसा कि हमने बता दिया कि after full employment AD where AD became equal to AD became equal to AS. full employment यहाँ हो गया आपके full employment level पे जब आपने डिमांड बढ़ाया. अगर क्लासिकल वाले डिमांड को हम रख लेते तो वो ये है ADU, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वो यहाँ पे था. यहाँ के बाद गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आ गए. अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जब इतना एक्सपेंडिचर के कारण जो मल्टीप्लायर इनकम ग्रोथ हुआ, इसके कारण अब हमारा इनकम और फर्दर राइज हो गया और हमारा डिमांड यहाँ पहुंच गया. लेकिन एक्चुअल फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि फुल रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर आपके एग्जॉस्ट, फुल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड, यहाँ पर फुल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए. देयर वर नो फर्दर रिसोर्सेज. अब क्या है कि यहाँ पे आपका एक तो प्राइस राइज है, लेकिन ये माना जाता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी में, इन डेवलपिंग इकोनॉमी विथ प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन, देयर वर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल. लेकिन while once you get to full employment equilibrium situation and there were no resources were left to produce more good, thereafter with inflationary gap there were static GDP cannot be increased because resources are not available. The further resources after this point
the further resources were not available and all resources were exhausted on that point where we achieve full employment. So the inflation which is arise after full employment point, it also tends to a static GDP. It means that after full employment there were no scope of increase in GDP. GDP में increase करने का कोई स्कोप नहीं बचता है. तो एक तो इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है, महंगाई है, और उसके साथ इनकम में वृद्धि करने के लिए या फिर उसको मैच करने के लिए दैट इन्फ्लेशनरी गैप शुड बी ब्रिज अप बाय मोर एंड मोर सप्लाई टू गिवन डिमांड लेवल. लेकिन उसके लिए आपके पास जीडीपी को फर्दर बढ़ाने के लिए यानी जीडीपी को बढ़ाने के लिए यानी फर्दर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई रिसोर्सेज है ही नहीं, तो जीडीपी स्टैटिक होंगे. यानी यहाँ पे आपका जीडीपी स्टैट हो जाएगा विथ फुल एम्प्लॉयमेंट. इसके बाद आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है. ना जीडीपी आगे बढ़ेगा और जीडीपी नहीं बढ़ेगा, और इसी कारण से आपके प्राइस राइज होते रहेंगे, कीमतें बढ़ती रहेंगी, जो कहीं ना कहीं लोअर एंड पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए बहुत एडवर्स सिचुएशन क्रिएट करेगा. डिमांड कम होंगे महंगाई के कारण और बचत कम होगी, और फिर अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस भी स्लो पड़ जाएंगे या धीमा पड़ जाएंगे. तीसरा है एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल. देखिए एक्सेस डिमांड, जब यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप पैदा होता है फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, वस्तुओं की इन्फ्लेशनरी गैप मीन्स कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति होती है, क्योंकि अवेलेबल वस्तु को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो परिणाम तो उसकी कीमतों में वृद्धि होती है, और वो कीमतों में जो वृद्धि होती है वो उतना ही के बराबर होता है जितना से सामान शॉर्टेज होता है मार्केट में. तो जब महंगाई बढ़ती है तो दूसरी तरफ मजदूरों के द्वारा मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग की जाती है. महंगाई बढ़ने के